Good morning, all of you. Today we will discuss about the concept of isomerism in the coordination compound. Clear? The one type of isomerism of the coordination compound I have discussed in my previous video, that is the geometrical isomerism. And today, in this type of this isomerism, we will discuss about structural isomerism we have done, and today we will discuss about the different types of the stereo isomerism. And this isomerism also known as the space isomerism. Clear? And how you can define this stereoisomerism? The isomerism in which the relative arrangement of the ligand around the metal is present in the different locations in the 3D space. The isomerism arises known as the stereoisomerism. Clear? The space isomerism arises an account of the different positions and the arrangement of the ligand in the 3D space. Clear? And overall, this stereoisomerism can classified in two categories. One is geometrical isomerism, and second one is known as the optical isomerism. So out of these two, we are taking the first one here, that is the geometrical, or you can say simply the cis and trans isomerism. And the word cis and trans is familiar to you. In the class 11th you have done. If the two atoms or two molecules or two ligands are present on the identical site, and this positions known as the cis position, and on the other hand, if the two same type of the atoms are present at the opposite end, like as this one, in this example the Cl is present at the opposite end, and this NH3 is present on the opposite end, and this isomerism arises known as the cis and trans isomerism. You people also know this cis and trans forms of any compound having lot of difference in their properties, like as the dipole moment is there, like as the difference of the melting point and boiling point, and maybe the stability, maybe the solubility. तो ये जो terms आपको करनी है cis and transform, and these cis and transform and is responsible to give the lot of variations of the property. ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं cis and trans isomerism की बात करूँगा, जिसको आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हो, तो हम सबसे पहला केस क्या लेंगे? इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? यू नो, किसी भी मेटल के आसपास जो लिगेंड का नंबर होता है, उस नंबर को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो. तो जितने भी हम केस पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नंबर आपको 4 मिलेगा. द फर्स्ट केस इन दिस हेडिंग, दैट इज MA2B2 टाइप ऑफ द एग्जाम्पल. MA2B2 टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म. एग्जाम्पल है प्लेटिनम and NH3 का ट्वाइस, Cl2 का ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाइएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड. क्लियर? अब इसकी दो फॉर्म्स पॉसिबल है. हम इसको सिस फॉर्म में ले सकते हैं, एंड दिस कंपाउंड कैन बी राइट इन दिस ट्रांस फॉर्म. In this cis form, the two same type of the atoms are present on one side of the metal atom. NH3 इधर लिखे हुए हैं, Cl इस तरफ लिखे हुए हैं, तो ये MA2B2 टाइप का एग्जाम्पल है. अगर ये अपोजिट एंड पे चले जाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगी. तो दिस इज द सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एंड इन दोनों कंपाउंड का जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में आपको लॉट ऑफ वेरिएशंस मिलेगा. एंड दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, फ्यू मोर एग्जाम्पल आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो. इन द सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट यू विल फाइंड, दैट इज MA2, सेकेंड टाइप इज MA2BC टाइप. अब इसमें दो एटम ए के तो सेम है, लेकिन बी और सी, तो तीन तरह के लिगेंड हो गए. दो लिगेंड आपके A2 हैं और एक लिगेंड बी है, एक लिगेंड सी है. ठीक है, इन द जनरल फॉर्म यहाँ देखिएगा PY पिरिडीन है आपका ये. दिस पिरिडीन एंड प्रिजिडीन आपके एक साइड में प्रेजेंट है,
और NH3 एंड Cl आपके एक साइड में प्रेजेंट हैं। द आइसोमेरिज्म अराइजेस नोन एज द सिस फॉर्म, वाइल इन ट्रांस फॉर्म PY एंड PY चले जाएंगे अपोजिट एंड पर। मे बी दिस वन, तो ये PY PY यहाँ पॉसिबल, तो यहाँ भी आप PY लिख सकते थे pyridine के लिए। तो दिस इज द NH3 and Cl, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ द कंपाउंड। तो इन दिस वे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ Ma2BC टाइप। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल जो आप ले रहे हैं जिसका एग्जाम्पल आएगा दिस इज MAB का होल ट्वाइस टाइप। अब जो आपका AB है ये आपका डाइडेंटेड लिगेंड हो गया। AB स्टैंड फॉर द डाइडेंटेड लिगेंड, तो AB कोई भी अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल है GLY का ट्वाइस। GLY स्टैंड फॉर व्हाट, दिस इज द ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के लिए आप यूज करते हैं दिस इज द ग्लाइसिनेटो। तो अल्टीमेटली ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है और उस एमिनो एसिड के अंदर आपके एक एंड पर NH2 जिसमें N एक डोनर एटम है, एक एंड पर COO जहाँ पर O एक डोनर एटम है, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ग्लाइसिनेट के नाम से जानते हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लाइसिनेटो लिख देते हैं। तो एक एंड पर यहाँ पर NH3 और इस एंड पर COO प्रेजेंट है, बीच में CH2 है, और ऐसा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये सिस फॉर्म है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, NH3 को इधर ले आइए, O को उधर ले जाइए, ये किया देखिए इस एग्जाम्पल में। ओ ये COO इधर आ गया, NH2 इधर आ जाएगा, तो ये NH2 चलेगा अपोजिट एंड पर, ये ऑक्सीजन चले जाएंगे अपोजिट एंड पर, एंड दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस नोन एज दैट इज द MAB ट्वाइस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म। वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पर आप लिखेंगे MABCD टाइप। MABCD में AB अपोजिट एंड पर है, COD अपोजिट एंड पर है, ये ट्रांसफॉर्म है। AC अपोजिट एंड पर है, BOD अपोजिट एंड पर है, तो ये सिस फॉर्म है। सो AB वन आइडेंटिकल साइड में प्रेजेंट है, CAD प्रेजेंट है वन आइडेंटिकल साइड में, तो ये सिस फॉर्म है। ऐसे ही आपका AB ये प्रेजेंट है, CD ये प्रेजेंट है, उल्टा कर दिया, C को उधर ले आए, D को उधर ले गए, तो इस ये भी आपकी सिस फॉर्म कहलाएगी। तो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड, दो यूनिडेंटेड लिगेंड हो, आप उनको MABCD की तरह यूज कर सकते हो। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू हैव डन। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल जो अगला ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसका नाम है दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज MAA ट्वाइस B2 टाइप। MAA ट्वाइस B2 टाइप, इसमें MAA ट्वाइस BC। अब जो हम एग्जाम्पल का डिस्कशन कर रहे हैं, ये बेटा जो यहाँ तक आपने केस पढ़ा है ये सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब जो एग्जाम्पल्स आप एंटर कर रहे हो इन सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसका एग्जाम्पल के फॉर्म में आप बता रहे हैं M, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, द कंपाउंड इज M, और M के साथ 4 लिगेंड कौन से प्रेजेंट हैं आपके, CH3 NH3, तो MA4B2 टाइप। फिर से ध्यान से सुनिएगा, MA4B2 टाइप इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। तो इस एग्जाम्पल में आप क्या नोटिस करेंगे, सेंटर में क्रोमियम है और Cl अपनी पास पास की पोजीशन पर लगे हुए हैं, और जब Cl चले गए जाएंगे अपोजिट एंड पर, तो ये सिस फॉर्म कहलाएगी और ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। रिमेनिंग पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द 4 NH3 मॉलिक्यूल। तो ये सिस फॉर्म है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ये ट्रांसफॉर्म है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो वन टाइप वी हैव डन फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म जो है आपकी MAA ट्वाइस B2 टाइप और MAA ट्वाइस BC टाइप। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, इस एग्जाम्पल में MAA2B2 टाइप या MAA2BC टाइप में क्या नोटिस करेंगे, ये सेंटर में कोबाल्ट का एटम है। एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर COCl2 EN का ट्वाइस। EN का मतलब इथाइलिन डाइमीन या इथेन 1,2 डाइमीन। तो आपको मालूम है EN एक डाइडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसने 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया। ये भी EN है, इसने 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, तो ये लगे हुए हैं पास पास की पोजीशन पर, ये EN भी लगे हैं पास पास की पोजीशन पर, और ये 2 Cl लगे हुए हैं 2 एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर। तो ये सिस फॉर्म में,
जब मैं ट्रांसफॉर्म की बात करूंगा तो Cl और Cl जाएंगे अपोजिट एंड पर, En और En भी कहाँ जाएंगे, अपोजिट फॉर्म पर। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो आइसोमेरिज्म को क्रिएट करते हैं। अब आपके एग्जाम के अंदर हम एक पेयर ऑफ कंपाउंड आपको दे देंगे और उस पेयर ऑफ कंपाउंड में आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। मे बी पॉसिबल एक फार्मूला वो आपको दे दे और आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, और साथ साथ आपसे ये भी पूछ लेगा कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दीज एग्जांपल्स। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं और आपको एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए और कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद उसकी नेमिंग का पार्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूँ एम, दिस इज MA3B3 टाइप। अब 3 आपके लिगेंड ए टाइप के हैं और 3 लिगेंड बी टाइप के हैं। एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज RsCl3PY का होल थ्राइस। तो ये आपका सेंटर में मेटल एटम प्रेजेंट है, ये PY पेरिडीन, ये PY पेरिडीन, ये PY पेरिडीन। इसने 3 पास पास की पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है। Cl ने रिमेनिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है। अगर आप PY के अपोजिट PY को ले जाएं, Cl के अपोजिट ले जाएं Cl के, और इस PY के अपोजिट ये वाला आपका Cl है, तो ये आपकी मैक्सिमम ट्रांसफॉर्म बन जाएगी इस वाले एग्जाम्पल्स के लिए। तो इन दिस वे यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल जिसको आप सिस एंड ट्रांसफॉर्म आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हो। ठीक है, वन मोर फॉर्म इज देयर जो आपकी बड़ी कॉमन होती है सिस एंड ट्रांस के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप इसको फेशियल आइसोमेरिज्म के फॉर्म में जानते हैं। तो इन सिस फॉर्म्स सिमिलर ग्रुप या ट्रियो ऑफ डोनर एटम ऑक्यूपाइंग द एडजेसेंट पोजिशंस एट द कॉर्नर of one of the octahedral faces, hence is called the facial या face isomerism. In transform, the position of trio of donor atoms are around the meridian of the octahedron, and so it is called the meridian या this is the Mur isomer. तो ये दो टर्म्स आपकी फेशियल और दिस द मेरिडियनल फॉर्म्स आप याद रखिएगा। हाउ यू कैन डिफाइन दिस वन, जो फेशियल पोर्शंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो फेशियल आइसोमर है, और जो मेरिडियल फॉर्म ऑक्यूपाई करते हैं तो वो मेरिडियल आइसोमर कहलाता है। ठीक है, तो इन दिस वे वन टाइप वी हैव डन। अब मैं नेक्स्ट टाइप जो लेके आ रहा हूँ उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल में क्या मिलता है, आपने 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं। एक होता है, मैंने क्लास 11th में ही आपको ये चीज़ बता दी थी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, एक होते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ऑल दोज कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द राइट हैंड साइड। मैंने फिर से मैं वर्ड को रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो आप इस साल हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज घुमाने की एबिलिटी है तो आप उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। इफ एनी ऑफ द कंपाउंड इज एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप उसको दिस इज द लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। तो जिन कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है आप उनको कायरल कंपाउंड्स और उनकी इस प्रॉपर्टी को चिरैलिटी बोलते हैं। तो दिस चिरैलिटी या कायरल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी का पार्ट आपको बेसिकली आगे पढ़ना है। एंड ठीक है, तो आउट ऑफ दीज जिन कंपाउंड्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वो एक दूसरे की मिरर इमेज को बनाते हैं। मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे कि एक कंपाउंड को हम मिरर के अंदर देख रहे हैं और जो मिरर इमेज बनेगी वो दूसरा कंपाउंड होगा। एंड दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म क्रिएटेड नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत जल्दी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी करेंगे। आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहाँ पर कंपाउंड का नाम है MAA का थ्राइस। यहाँ पर 3 डाई डेंटेट का एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, EN और EN। सेंटर में कोबाल्ट है, ये पास की पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, ये पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई और ये पोजीशन। जब आप इस कंपाउंड को मिरर में देखोगे तो मिरर में देखने पर ये इसका लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो ये मिरर इमेज है, तो ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है और ये लीवो कंपाउंड है। यू नो द मीनिंग ऑफ टर्म डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑन द राइट हैंड साइड,
एंड LIVO कंपाउंड्स आर दोज विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो बेसिकली डेक्स्ट्रो एंड LIVO के बेस पर आप इन दो फॉर्म्स को बेसिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, यहाँ पर हमने ऑक्जेलेट आयन लिया हुआ है, तो दिस ऑक्जेलेट आयन की भी सेम इसकी तरह पोजिशन है, तो ये दोनों कंपाउंड भी लिटरली इन्वर्टेड हैं जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जो अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, दिस इज द MAA2B2 और MAA2BC टाइप ऑफ द एग्जाम्पल। तो इन दिस केस क्या मिलेगा आपको, एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोबाल्ट Cl2 En का ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हम किस तरीके से इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड लिया है सेंटर में आपका कोबाल्ट है, ये Cl और ये Cl है, और अपोजिट एंड पर आपने Cl En लगा दिया। दिस इज Cl एंड Cl, अपोजिट एंड पर En और En लगा दिया। तो याद रखिएगा ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं, तो ये लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, वन मोर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो देयर, ये आपका एक Cl, ये भी आपका एक Cl है, पास पास की पोजिशंस पर प्रेजेंट है, और En ये प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जब इस कंपाउंड को आप मिरर की तरह ऑब्जर्व करोगे तो ये Cl आपको लिखेंगे लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में, और ये En और En की भी लेटर इन्वर्जन आपको दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये भी आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। आपको मालूम है नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस जो होती हैं वो उनके अंदर कैरलिटी होती है और इन सुपर इम्पोजिबल्स के अंदर कैरलिटी नहीं होती। तो बेसिकली दो फॉर्म्स के फॉर्म में एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, तो ये फंडा भी आपने ऑटोमेटिकली क्लियर कर लिया। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट केस लेके आ रहा हूँ उस केस में नाम है आपका MAA-B2C2 टाइप। MAA एक ही लिगेंड है लेकिन नंबर उसका एक ही है। दो आपके लिगेंड एटम B2 के हैं, दो लिगेंड एटम आपके C2 के हैं। एग्जाम्पल हो गया दिस इज Cl NH3 तो ये B2 हो गया, ये C2 हो जाएगा। और En जो है ये AA को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है। जब आप इसको इंडिकेट करेंगे तो ये आपकी मिरर इमेज दिखाई दे रही है, तो ये आपकी सिस फॉर्म सॉरी ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है और ये इसकी LIVO फॉर्म है। तो ये रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट राइट हैंड साइड में और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट हैंड साइड में। तो इन दिस फिगर्स you can explain the optical activity of the various compounds. ठीक है, so overall the complete phenomena of the isomerism you can summarize in various forms. जो सबसे पहली फॉर्म आपने पढ़ी थी, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ सारा कुछ। सबसे पहले मैंने आपको बढ़ाया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें आपने एग्जाम्पल्स किए थे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा आपने किया था सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, तीसरा आपने किया था लिंकेज, और चौथा किया था आपने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन का पार्ट एग्जाम्पल से क्लियर है, आयंस का नंबर डिफरेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सॉल्वेट में डिफर करता है, लिंकेज के अंदर आपका एम्बीडेंटेड फॉर्म में होता है, और कोऑर्डिनेशन में मेटल एटम की पोजिशंस या लिगेंड अपनी पोजिशंस को चेंज कर लेते हैं। तो दीज 4 फॉर्म्स आर पॉसिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो याद रखिएगा दिस आइसोमेरिज्म जो हमने डिस्कस यहाँ पर करी है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है, बाकी रिमेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म का कोई लिंक इनसे नहीं है। ठीक है, सेकंड जो टाइप मैंने आपको बताई है इन माय वीडियो दैट इज द टाइप्स ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो के अंदर भी हमने जो आपकी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें जो सारी टाइप्स को मैंने ब्रीफ आउट किया है। फर्स्ट जो आपकी टाइप है MA2B2 टाइप, अगर एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो MA2B2 टाइप, सेकंड टाइप इज MA2BC टाइप, और थर्ड MAB का ट्वाइस टाइप। तो ये फॉर्म्स है सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म है, ये भी सिस एंड ट्रांसफॉर्म है। तो वन एग्जाम्पल दिस वन, सेकेंड एग्जाम्पल दिस वन, थर्ड एग्जाम्पल दिस वन। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है आपकी उसमें हम 4 एटम्स लेंगे डिफरेंट टाइप के MABCD टाइप्स। तो वन ट्रांसफॉर्म है, A और B अपोजिट एंड पर है, C एंड D अपोजिट एंड पर है। तो इन दिस वे ये दो आपकी सिस फॉर्म है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म बन जाती हैं, तो ये आपको आइसोमेरिज्म का टाइप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूंगा मैं,
तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा सॉरी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो दिस MA4B2 टाइप, ये आपका एग्जाम्पल है। ए बी ए पास पास की पोजीशन पर और ए पास पास की पोजीशन, तो ये सिस फॉर्म है। और ट्रांस में बी और बी चले जाएंगे अपोजिट पर, ए और ए चले जाएंगे अपोजिट फॉर्म में। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल था आपका MAA का ट्वाइस B2 टाइप या MAA का ट्वाइस BC टाइप। तो एग्जाम्पल क्लियर है एंड बेसिकली यू कैन अप्लाई द कंटेंट अकॉर्डिंगली। और थर्ड वन जो है आपका दिस इज MA3B3 टाइप एग्जाम्पल, और ये सिस फॉर्म और ये इसकी ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे द डिफरेंट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, जो मैंने 2 टाइप बता दी, अब एक बार बहुत ब्रीफ कर लेते हैं हम किसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। फर्स्ट टाइप क्या है आपकी MAA का होल थ्राइस टाइप, सेकंड MAA B2C2 टाइप। यहाँ अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है और ये आपकी फॉर्म है, मिरर इमेज है, तो लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। एंड जो नेक्स्ट टाइप है आपकी दिस इज MAA ट्वाइस B2 टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड वन, जहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल और इमेजेस आपको दिखाई देती हैं। तो इन दिस वे द आइसोमेरिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें एग्जाम्पल्स आपको बहुत ध्यान से याद में रखने हैं बेटा। और जो पेयर ऑफ कंपाउंड दिया होगा उसमें नेमिंग के साथ साथ वो आपसे कोई भी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पूछ लेगा, ठीक है। तो इन दिस वे दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड बाय ऑल मीन्स एंड यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।